Student, unit number 4, a very important first topic is Zeeman effect. In 1896, Zeeman discovered that when a sodium flame is placed between the poles of a powerful magnet, the two lines of the first principal doublet, bracket में capital D1 and capital D2 lines, are considerably broadened, and the outside edges of the lines are polarized. If the resolving power of spectroscope is sufficiently high, it is found that the spectral line will split into number of components. Both splitting and polarization were explained by scientist Lorentz on the basis of classical electromagnetic theory. This effect was called NZD in short. This effect was called normal Zeeman effect. I mean to say, when a spectral line splits in a magnetic field, the lines into which it splits, the so-called Zeeman components, are polarized either parallel to the magnetic field or polarized perpendicular to direction of magnetic field. ये अब डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स always start from north pole, terminate at south pole. These are magnetic lines of force. I mean to say, this is direction of magnetic field. This is direction in this direction, yani along the direction of magnetic field. Yani when observations are taken along the direction of magnetic field, we will find normal doublet. And these two lines, doublet means two lines, will be circularly polarized, that too in opposite direction. Yani circularly polarized, two lines will be observed when observations are made along the direction of magnetic field. Yani circularly polarized ये कब होंगी दो lines? If viewed in a direction parallel to magnetic line of force. So these circularly polarized are using एक क्लॉकवाइज में है और एक एंटी क्लॉकवाइज में है. एक लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज होगा और एक राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज होगा. So these are circularly polarized in opposite direction, normal doublet. But on the other hand, if observations are made, ये direction of magnetic field है, if observations are made perpendicular to direction of magnetic field, then normal triplet will be found, यानी three lines. And these three lines will be plane polarized if viewed at right angle to direction of magnetic field. Yani when observations are made perpendicular to direction of magnetic field, then normal triplet, and those three lines will be plane polarized. Lekin on the other hand, when observations are made along the direction of magnetic field, then normal doublet, but these will be circularly polarized, that too in opposite direction. So student, the Zeeman components, normal Zeeman effect we are talking about, the Zeeman components are always symmetrical about the position of the undisplaced line. According to classical theory of Lorentz, each spectral line should split into two components when viewed along the magnetic field direction, and each spectral line should split into three components when viewed perpendicular to the direction of magnetic field. This was indeed found to be so in case of singlet lines of zinc, calcium, cadmium and tin. In the normal triplet, the three components arising from the line of frequency nu 0 have frequencies nu 0, nu 0 plus delta nu 0 and nu 0 minus delta nu 0. The undisplaced line is a pi component, bracket में parallel polarization, and the two displaced lines are sigma components. Delta nu 0 gives a separation between two
टू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट लाइंस। क्यों? क्योंकि 3 लाइंस की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल ट्रिपलेट, ये फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, ये वाली कितनी बताई? न्यू जीरो प्लस डेल्टा न्यू जीरो। ये वाली लाइन की फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो माइनस डेल्टा न्यू जीरो। तो हर दो सक्सेसिव लाइन के बीच में कितना गैप हुआ? न्यू जीरो प्लस डेल्टा न्यू जीरो में से न्यू जीरो को माइनस करो, कितना हुआ? डेल्टा न्यू जीरो। न्यू जीरो में से न्यू जीरो माइनस डेल्टा न्यू जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना? डेल्टा न्यू जीरो। ये हमें प्रूव करना है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। क्लासिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट, दोनों में यही रिलेशन आएगा। डेल्टा न्यू जीरो इक्वल टू लिटरली कैपिटल बी ओवर 4 पाई एम सफिक्स ई। दिस इज टू बी प्रूव्ड। ऊपर भी h से मल्टीप्लाई, नीचे भी h से मल्टीप्लाई। लिटरली h of 4 pi m suffix e is Bohr magneton. So this is Bohr magneton into capital B divided by h. H is Planck constant, capital B is magnetic flux density या magnetic induction vector. So magnitude of separation यानी delta nu zero depends upon capital B यानी magnetic field strength. Thus an observer looking along a line of force perpendicular to field of perpendicular to द्वारा field. Thus an observer looking along a line perpendicular to magnetic field sees a central component polarized parallel to the field यानी pi line, and on either side a component polarized perpendicular to the magnetic field यानी sigma component. While if he looks along the lines तो नॉर्मल डबलेट होगा, जिसमें से 2 लाइंस होगी, सेंट्रल लाइन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी पाई वाली। आजू बाजू में 2 लाइंस होंगी नॉर्मल डबलेट, जिसको हम कहते हैं वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगी, दैट टू इन अपोजिट डायरेक्शन। एक लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड और एक राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। कब बात कर रहा हूं? व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर मेड along the direction of magnetic field. So when we take observation along the direction of magnetic field, I mean to say when we see along the line of force, yeah, along the magnetic field, yeah, along the line of force through a hole bored in one of the pole pieces, the central line will disappear and the 2 lateral components are circularly polarized. Further, these circularly polarized components rotate in opposite directions. The photographs are commonly taken perpendicular to the line of force, for they show all the components. Student, normal Zeeman effect is not valid. This is very important line. Normal Zeeman effect is not valid for single valence electron. In normal Zeeman effect, total spin is 0. Remember, in normal Zeeman effect, total spin is 0. This normal Zeeman effect is shown by all the atoms having 0 spin. Normal Zeeman effect happens in singlet levels. S0 का मतलब क्या होता है? S0 multiplicity 2s plus 1, 2 into 0 plus 1 यानी 1. So normal Zeeman effect happens in singlet levels यानी singlet terms, क्योंकि S0 है. इफ एक्सटर्नल, अब मैग्नेटिक फील्ड भी 2 टाइप का होता है, एक होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन, 2 फील्ड होते हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड एक इंटरनल फील्ड। इंटरनल फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि स्पिन तो 0 है, इसका तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is less than internal magnetic field, then magnetic field is called weak magnetic field. And when magnetic field is said to be strong, if external magnetic field is greater than the internal magnetic field due to revolution of electron, then we say magnetic field is strong. Normal Zeeman effect can be explained by classical mechanics as well as क्वांटम मैकेनिक्स। मैं स्टूडेंट आपको बताऊं, जीमन इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप, वन इज नॉर्मल जीमन इफेक्ट, सेकंड इज अनोमलस जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स।
But on the other hand, anomalous Zeeman effect can only be explained by quantum mechanics. इसीलिए नाम anomalous पड़ा. Explanation of normal Zeeman effect. एक तो capital S is zero. अब capital S is zero, इसका मतलब spin angular momentum is zero. इसका मतलब spin quantum number is also zero. यानी little s भी zero है, capital S भी zero है. Capital S यहाँ पे spin angular momentum है. और आप जानते हैं कैपिटल एस इज इक्वल टू एस स्टार इंटू एच क्रॉस, यानी रूट लिटिल एस इंटू लिटिल एस प्लस वन इंटू एच क्रॉस. लिटिल एस स्पिन क्वांटम नंबर है, तो अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो जाहिर सी बात है स्पिन क्वांटम नंबर भी जीरो होगा. ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, अब स्पिन तो है नहीं तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन ही बचेगी. सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक ए सर्कुलर करंट. करंट का फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, आप जानते हैं ये न्यूक्लियस है और ये देखो स्टूडेंट ये सर्कुलर ऑर्बिट बता दिया, ये इलेक्ट्रॉन है. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब कन्वेंशनल करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. और अगर कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो राइट हैंड की फिंगर को क्लॉकवाइज करेंगे, थंब इनवर्ड आएगा. यानी ये थंब जो है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. एनी करंट लूप ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल. Any current loop always behaves like a magnetic dipole. Repeat. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज है. कन्वेंशनल राइट हैंड की फिंगर को क्लॉकवाइज में कर्ल करिए तो थंब जो है दैट इज थंब इज इनवर्ड, यानी लाइक दिस, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. सो सच ए करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to plane of orbit equivalent to magnetic dipole of moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. और म्यू किसके बराबर होता है? करंट इनटू एरिया. म्यू जो है दैट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया. और ये इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जो है वो r है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. और करंट किसके बराबर है? चार्ज और टाइम पीरियड, क्योंकि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लीनियर फ्रीक्वेंसी. एंड वी नो वेरी वेल ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई न्यू. इसका मतलब न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा और 2 पाई. तो करंट की वैल्यू लिटिल ई ओमेगा और 2 पाई, और ये पाई एरिया पाई आर स्क्वायर. सो पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा. अगले स्टेप में हम ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी m से मल्टीप्लाई करेंगे. m सफिक्स ही यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. और हम अच्छी तरह जानते हैं m ओमेगा आर स्क्वायर इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी दैट इज आउटवर्ड होगी, यानी डॉट होगी, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप इज डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. तो स्टूडेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने अभी बताया था, ऊपर भी m सफिक्स e से मल्टीप्लाई, नीचे भी m सफिक्स e से. तो इससे ये फायदा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का मास r स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये हम जानते हैं ये क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. और ये लिटरली और टू m सफिक्स e, ये m सफिक्स e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक चार्ज या मिनिमम चार्ज, ये स्केलर फॉर्म है. और अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है. स्केलर फॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म, और माइनस साइन का मतलब है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है. और आपने देखा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप है. ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप है. अगर ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो इसका मतलब म्यू जो है, म्यू की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, यानी 180 होगी. यानी कहने का मतलब ये जो डायरेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है दिस इज डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर. और ये जो एंगल है इसको मैंने थीटा डैश बोल दिया. और थीटा डैश और थीटा दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर बिकॉज दोनों एंगल का सम 180 है. दे आर सप्लीमेंट. थीटा डैश इज 180 माइनस थीटा. म्यू की डायरेक्शन एल के अपोजिट है. म्यू जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एल इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा डैश है, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है. और ये एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है. और ये एल का जो प्रोजेक्शन है बी के ऊपर वो ये है, ये प्रोजेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है.
तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑन जेड एक्सिस है वो एल सफिक्स जेड है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल सफिक्स जेड है, ये एल है। अगर हम कहीं कोस थीटा कहें तो दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी एल सफिक्स जेड ओवर एल। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन इज, क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब इधर आएगा, राइट हैंड की फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो थंब इज लाइक दिस। तो ये जो राइट हैंड का थंब है ये एल वेक्टर की डायरेक्शन है। सो एल वेक्टर का मोड तो भी मैंने बताया था एम सफिक्स ई आर स्क्वायर ओमेगा। क्वांटम मैकेनिक्स से कहती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल स्टार इनटू एच बार, और हम जानते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एंड आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। तो एल स्टार की वैल्यू क्या है कि रूट एल इंटू एल प्लस वन। इस कैपिटल एल और इस एल में फर्क है, लेफ्ट साइड में जो एल होता है वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट साइड में जो होता है क्वांटम नंबर है। कैपिटल एल यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन लिटिल एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और एच प्लैंक कांस्टेंट है, क्योंकि एच क्रॉस इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। देयरफॉर ये कैपिटल एल को हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, लिटिल ई और 2 एम सफिक्स ई, और ये कैपिटल एल की वैल्यू इनकॉर्पोरेट किया रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच और 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, एटम इज सेट इनटू प्रिसिशनल मोशन, ये एल वेक्टर की जो टिप है इस कोन को ट्रेस करेगी। सो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड बी, एटम इज सेट इनटू प्रिसिशनल मोशन, किसके अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसको हम लार्मर प्रिसेशन भी बोलते थे। लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी एक रोज आपको बताया था, लार्मर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लिटिल ई कैपिटल बी ओवर 4 पाई एम सफिक्स ई। ये फॉर्मूला आपको लार्मर फ्रीक्वेंसी का हमेशा याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, लार्मर थ्योरम, आई डिस्कस्ड इन वन ऑफ माय लेक्चर। सो एज द ऑर्बिट, जैसे ये ऑर्बिट प्रिसेस करेगा तो उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका वो कोन को ट्रेस करेगा, तो एल वेक्टर की टिप कोन को ट्रेस करेगी। सो एज दिस ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिट, so as the orbit precesses the orbit normal, this is orbit normal designated by orbital angular momentum capital L, will describe a cone about which, about field direction capital B. So the component of angular momentum in the direction of field, वो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट जो फील्ड के साथ है, जो फील्ड के अलोंग है, जो फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ है, वो है एल सफिक्स जेड। So the component of angular momentum in the direction of field is capital L suffix z, and from quantization of direction हमने स्पेशल क्वांटाइजेशन भी डिस्कस किया था, वहां स्पष्टीकरण किया था। from quantization of direction capital L suffix z is m suffix L into h over 2 pi, और वहां कहा था m suffix L जो है this is orbital magnetic quantum number which is discrete, which is not continuous, values are discrete and discrete values run from minus L to L। जब माइनस एल से एल आएगा तो बीच में जीरो आएगा, एम सफिक्स एल की टोटल पॉसिबल वैल्यू 2l plus 1। सो द इंक्रीज एनर्जी ऑफ एटम, जब मैं यहाँ पे एटम बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो करंट बनेगा, और करंट लूप ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी आती है। सो इंक्रीज एनर्जी ऑफ एटम यानी इसको टाइनी एटम बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू है, किस में रखा है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इंक्रीज एनर्जी, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का हम फॉर्मूला जानते हैं, माइनस म्यू बी कोस थीटा, क्योंकि एनर्जी स्केलर है, स्केलर में हमेशा राइट साइड में डॉट प्रोडक्ट आएगा, माइनस वेक्टर म्यू डॉट वेक्टर बी। यू नो प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जब भी ये दो वेक्टर के बीच में डॉट होता है, ये थीटा, यहाँ पे जो मुझे ये थीटा डैश बोलना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज थीटा डैश इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। कौन से वेक्टर, म्यू वेक्टर बी वेक्टर, एल वेक्टर नहीं, क्योंकि थीटा हैज बीन सिंबल टेकन बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेकिन थीटा डैश इज एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान दें, बी कॉशियस, थीटा डैश इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस फिगर शोन। So delta is minus vector mu का mode, vector b का mode, dot हो तो cos theta dash is angle between these two vector, mu vector and b vector when their tail join with each other। तो यानी ये वो पॉइंट है जहां से दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, म्यू वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ, ये थीटा डैश है, थीटा डैश इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर व्हेन दे फ्रॉम व्हिच दीज टू वेक्टर डाइवर्ज। तो ये आ जाएगा माइनस म्यू बी कोस थीटा डैश, इसी वेक्टर का मोड स्केलर होता है, थीटा डैश इज 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव यानी माइनस कोस थीटा,
यानी म्यू बी कोस थीटा, और कोस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से मिल जाएगा 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जिसके साथ एंगल बनता है बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, कोस थीटा आ जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज यानी एल सफिक्स जेड ओवर एल, और एल सफिक्स जेड का मैग्नीट्यूड, एल सफिक्स जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, एम सफिक्स एल इंटू एच और 2 पाई, और कैपिटल एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है क्वांटम मैकेनिक्स से रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच ओवर 2 पाई। अब स्टूडेंट ये एच ओवर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस एच ओवर 2 पाई विल बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos थीटा की वैल्यू मुझे ये डेल्टा ई के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो डेल्टा ई विच इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गया, म्यू इनटू डी। पहले तो म्यू की वैल्यू पुट करो, ये म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है, लिटिल ई और 2m सफिक्स ई रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच और 2 पाई। ध्यान दें ये म्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, देखो ये म्यू की वैल्यू, फिर कैपिटल बी, फिर कोस थीटा का वैल्यू क्या है, ये कैंसिल हो गए, कोस थीटा इज एम सफिक्स एल और रूट एल इंटू एल प्लस 1, तो ये रूट एल इंटू एल प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये देखिए सिंपल, तो लिटरली एच और 2 इंटू 2 4, और ये पाई एम सफिक्स ई, और ये कैपिटल बी, और ये एम सफिक्स एल। वैसे लिटरली एच और 4 पाई एम सफिक्स ई क्या होता है स्टूडेंट, पहले भी आपको बताया सो मेनी टाइम, लिटरली एच और 4 पाई एम सफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी विच इज बोहर मैग्नेट्रॉन, और बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होते हैं, जूल पर टेस्ला भी होते हैं। तो ये था डेल्टा ई का एक्सप्रेशन, अभी थोड़े से डेरिवेशन रह गए और लगभग हम कंप्लीशन की तरफ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम एक्सप्लेनेशन, क्योंकि नॉर्मल जीवन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल एज क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि आई एम डिस्कसिंग क्वांटम एक्सप्लेनेशन और नॉर्मल जीवन इफेक्ट, इसलिए मुझे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट नॉर्मल जीवन इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, डेल्टा इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन लिखा था, और लिटरली कैपिटल बी और 4 पाई एम सफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको हमने लार्मर थ्योरम में बताया भी था। ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है, न्यू सफिक्स है, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, लिटरली कैपिटल बी और 4 पाई एम सफिक्स ई, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये सफिक्स कैपिटल एल का मतलब लार्मर फ्रीक्वेंसी है, और इस लिटल एल का मतलब ऑर्बिटल, ध्यान दें। और डेल्टा ई मीन ई माइनस ई जीरो विच इज एच न्यू सफिक्स कैपिटल एल एम सफिक्स लिटल एल। एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम से ई जीरो इज चेंज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड टू कैपिटल ई। जब मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं अप्लाई करते, दो केस हम डील करेंगे, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड विद मैग्नेटिक फील्ड। और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, तो उस केस में एनर्जी सिंबल इन एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इज डिनोटेड बाय ई जीरो, एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम से ई जीरो इज चेंज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड टू कैपिटल ई, और वैसे डेल्टा में चेंज होता है, तो कैपिटल ई क्या आ जाएगा, ई जीरो प्लस एच न्यू सफिक्स कैपिटल एल एम सफिक्स एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज वैल्यू, एम सफिक्स एल की वैल्यू बताया था एल से लेके माइनस एल। सो बिकॉज ऑफ बोथ पॉजिटिव and negative values of orbital magnetic quantum number, magnetic splitting is symmetrical about the original energy level E0. Since m suffix L can have 2L plus 1 values, an energy level in presence of weak magnetic field will split up into 2L plus 1 equispaced component. यही normal Zeeman effect है। मैं दोबारा बता दूं normal Zeeman effect क्या है? Since m suffix L can have 2L plus 1 values, energy level in presence of weak magnetic field will break up और स्प्लिट अप इनटू 2L प्लस 1 इक्विस्पेस कंपोनेंट। और ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में हम सिंबल यूज करते हैं ई जीरो, और डैश और डबल डैश सिंबल आप देख रहे हैं, ये हायर एनर्जी लेवल या अपर एनर्जी लेवल, और अपर एनर्जी लेवल में सिंगल डैश जो है दैट कोरस्पॉन्ड टू हायर एनर्जी, डबल डैश जो है दैट कोरस्पॉन्ड टू लोअर एनर्जी, प्राइम जो सिंगल प्राइम कोरस्पॉन्ड टू हायर एनर्जी लेवल, डबल प्राइम कोरस्पॉन्ड टू लोअर एनर्जी लेवल। ये नोटेशन एटॉमिक फिजिक्स में भी रहेगा और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी यही नोटेशन रहेगा, ध्यान दें। डैश जो है सिंगल डैश हमेशा हायर एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करेगा, डबल प्राइम जो है लोअर एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है जिसकी एनर्जी एच न्यू जीरो विच इज ऑलवेज हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो न्यू जीरो क्या आ जाएगा, ई जीरो डैश माइनस ई जीरो डबल डैश ओवर एच। तो ये केस था विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। Now I proceed to discuss when magnetic field is present. So when magnetic field is applied, तो then फिर सिंबल E जीरो डैश E जीरो डबल डैश नहीं होंगे, फिर सिंबल E डैश E डबल डैश होंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आएंगे।
और ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डैश जो है अपर एनर्जी स्टेट का है, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डबल डैश जो है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी। मैं फिर बता दूं, ये जो है ये हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट के लिए, हायर एनर्जी स्टेट के लिए आपको जो सिंबल यूज करने हैं, हायर एनर्जी स्टेट के लिए डैश यूज करेंगे, और जो ये लोअर एनर्जी स्टेट आप देख रहे हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में जो सिंबल आप यूज करेंगे वो डबल प्राइम है। तो लोअर एनर्जी स्टेट कॉरेस्पॉन्ड टू सिंबल डबल प्राइम, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी स्टेट, ये एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी स्टेट, ये एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर एनर्जी स्टेट, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू हायर एनर्जी स्टेट। So when electron jumps from higher energy level to lower energy level, I mean to say E dash to E double dash, फिर एनर्जी क्या आएगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी एच न्यू इज अपर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, यानी ई डैश माइनस ई डबल डैश। तो एच न्यू क्या आ जाएगा, अब ये ई डैश और ई डबल डैश का एक्सप्रेशन लिखना है स्टूडेंट। ये जो एक्सप्रेशन है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है एम टी आर लिख रहा हूँ, एम टी आर की फुल फॉर्म होती है मुझे तुम रट लो। न्यूमेरिकल भी करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, या मेमोरी टिप्स रिजल्ट, इसको याद रखिए, ई इक्वल टू ई जीरो प्लस एच न्यू सफिक्स कैपिटल एल, ये जो है ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है, एम सफिक्स एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इस फार्मूले को देख के जब तक ये फार्मूला डिराइव नहीं होगा आगे डेरिवेशन बढ़ेगा नहीं। मेरे को ई डैश भी लिखना है, ई डबल डैश भी लिखना है, ई डैश भी मैं इसी को देख के लिखूंगा, ई डबल डैश भी मैं इसी को देख के लिखूंगा। देखो ई डैश, तो जब मैं ई डैश लिखूंगा यहाँ डैश आ जाएगा, यहाँ डैश आ जाएगा, और एम सफिक्स एल डैश आ जाएगा, एच तो कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू सफिक्स कैपिटल है, लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पे डैश नहीं आएगा, दोबारा फिर डैश हियर डैश हियर डैश हियर, और डबल डैश में डबल डैश हियर, यहाँ पे डबल डैश और यहाँ पे डबल डैश, यही लिखा ई डैश, ई डैश इसको देख के लिखा, माइनस ई डबल डैश इसको देख के लिखा, फिर ई जीरो डैश माइनस ई जीरो डबल डैश प्लस एच न्यू कॉमन इनटू एम सफिक्स एल डैश माइनस एम सफिक्स एल डबल डैश, एच नीचे आ गया और एच इधर आ गया, ये कैंसिल, तो एम सफिक्स एल डैश माइनस एम सफिक्स एल डबल डैश, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एम सफिक्स एल, वेयर डेल्टा एम सफिक्स एल इज एम सफिक्स एल डैश माइनस एम सफिक्स एल डबल डैश। एम सफिक्स एल डैश का मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू हायर एनर्जी स्टेट, एम सफिक्स एल डबल डैश का मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी स्टेट, दैट्स व्हाट मीनिंग, उल्टा नहीं बोलेंगे, डैश माइनस डबल डैश है, प्लीज ध्यान दे, अपर में से लोअर है स्टूडेंट, प्लीज वो अपर में से लोअर है, इसमें ये मेरे को ट्रांजिशंस आगे ड्रॉ करनी है तो ध्यान दे, अपर माइनस लोअर, मैं फिर बोल दूं अपर माइनस लोअर। सो सिलेक्शन रूल्स फॉर द कौन सी ट्रांजिशन अलाउ होगी कौन सी नहीं होगी उसके लिए सिलेक्शन रूल्स होंगे। सिलेक्शन रूल्स फॉर द अलाउड ट्रांजिशंस आर डेल्टा एम सफिक्स, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं वो डेल्टा एम सफिक्स एल है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर तो जीरो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है, तो इसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ही आएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, तो डेल्टा एम सफिक्स एल इज 0, प्लस माइनस 1, तो तीन पॉसिबिलिटी होगी, केस नंबर 1 डेल्टा एम सफिक्स एल इज माइनस 1, केस नंबर 2 डेल्टा एम सफिक्स एल इज 0, केस नंबर 3 डेल्टा एम सफिक्स एल इज प्लस 1, और डेल्टा के मायने चेंज है, लेकिन यहाँ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, ये देखो चेंज क्या है, अपर माइनस लोअर, ठीक है, तो डेल्टा एम सफिक्स एल इज माइनस 1, तो यहाँ डेल्टा एम सफिक्स एल को एक बार यहाँ माइनस 1 रखिए, तो ये एक लाइन आ गई, डेल्टा एम सफिक्स एल 0 रखे, यहाँ 0 रखे, 0 टू फाइनल 0, तो ये आ गई दूसरी लाइन, डेल्टा एम सफिक्स एल इक्वल टू प्लस 1 रखे इसमें, तो तीसरी लाइन न्यू 0 प्लस न्यू सफिक्स एल। तो यही तो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में है कि जो एक जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो एक लाइन होती है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो सिंगल जो लाइन होती है दैट ब्रेक्स अप इनटू 3 लाइंस, एक जिसका नाम होता है न्यू 0 माइनस न्यू एल, एक का नाम है न्यू 0 विच इज अनडिस्प्लेस्ड लाइन, और एक का न्यू 0 प्लस न्यू सफिक्स एल। इसी की मैं बात कर रहा था, नॉर्मल ट्रिपलेट व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर मेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली 3 लाइंस आ गई, और हर दो लाइन के बीच में गैप न्यू 0, हर दो लाइन के बीच में गैप न्यू सफिक्स एल आएगा, क्योंकि अगर हम इस न्यू 3 में से न्यू 2 घटाते हैं तो न्यू सफिक्स एल, और इसी प्रकार से न्यू 2 में से न्यू 1 घटाते हैं क्योंकि बड़ा में से छोटा है तब भी न्यू सफिक्स एल, तो हर दो लाइन के बीच में गैप न्यू सफिक्स एल आ रहा है। तो स्टूडेंट लास्ट में फाइनली व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स इनटू 3 लाइंस, एक न्यू 0, एक न्यू 0 प्लस न्यू एल, एक न्यू 0 माइनस न्यू सफिक्स एल, ये जितनी इसके राइट साइड है ये उतनी उसके लेफ्ट साइड है, ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन है, यही नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। एंड जीमैन स्प्लिटिंग, ये जीमैन स्प्लिटिंग है,
दिस इज कि दो लाइन के बीच में कितना गैप है, दिस इज जीमन स्प्लिटिंग। जीमन स्प्लिटिंग इज गिवन बाय इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, यानी लिटरली बी और 4 पाई एम सफिक्स ए। Example, in cadmium, transition of spectral line of wavelength 6439 angstrom due to transition between 3 1d2 to 2 1p1। 1 ये ऊपर क्यों है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में s जो है वो 0 होता है और जो j की वैल्यू है वो क्या होती है l प्लस एस। j की वैल्यू l प्लस एस और s तो 0 हो गया तो j की वैल्यू क्या है l, और d में l की वैल्यू कितनी है 2 और P में L की वैल्यू कितनी है 1। तो जिसका मतलब जितना L होएगा उतना ही J होएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन आप जानते हैं 2s + 1 LJ और ये N है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सो रिजल्टेंट स्पिन इज 0, ये सिंगलेट है, देयरफॉर J की वैल्यू L आएगी। आल्दो अब मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ये 3 1d2 से 3 1d2 से 2 1p1 और ये देखिए 3 1d2, तो इसमें L की वैल्यू कितनी है, ये तब है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए तो एक ही लाइन है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए तो एक ही लाइन है जिसकी वेवलेंथ है 6439 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये डी एनर्जी स्टेट में L की वैल्यू 2 है, पी एनर्जी स्टेट में L की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 2 का मतलब m सफिक्स L की वैल्यू L से माइनस L यानी 2 से -2, 2 1 0 -1 -2 और इसी प्रकार से L इज 1 और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से m सफिक्स L की वैल्यू 1 0 -1 और मैंने आपको पहले कहा था डेल्टा m सफिक्स L इज हायर, ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट, ये हायर एनर्जी स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट और डेल्टा m सफिक्स L आर्टिकल में अभी बताया था अपर एनर्जी स्टेट का ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस लोअर एनर्जी स्टेट का ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये सिलेक्शन रूल्स है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में, दीज आर सिलेक्शन रूल। डेल्टा m सफिक्स L इज 0 and +-1। सबसे पहले इस 2 का चेक लगाते हैं, इसके ऊपर 2 - 1, ये देखो ये ml डैश है, ये ml डैश ml डैश ml डैश ml डैश, ये ml डबल डैश, तो ml डैश में से ml डबल डैश घटाना, 2 - 1 1 और जो इसमें आ रहा है इसको ये ट्रांजिशन अलाउड है। 1 माइनस, ये देखो ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ आ रही है, 1 - 0 अगेन 1, यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे देखिए -1, 0 -1 अगेन 1। तो ये जो बंच ऑफ 3 लाइंस आप देख रहे हैं, दीज 3 लाइंस कोरस्पोंडिंग टू डेल्टा एम एल इज 1। अब मैं वो ट्रांजिशन देखूंगा जिनमें डेल्टा एम एल 0 आएगा, यानी सेम टू सेम लेवल, एम एल डैश इज 1, एम एल डबल डैश इज आल्सो 1। ये देखो ब्लू वाली, ये 1 से 1, 0 से 0, -1 से -1, तो जब 1 से 1 जाएंगे 1 - 1 0, 0 से 0 जाएंगे, इस 0 में से 0 घटाइए, -1 से -1 जाएंगे तब भी 0। तो these 3 bunch of 3 these blue lines will correspond to delta ml is 0 और वो सिलेक्शन रूल में वो आ रहा है। अब ये अब आप ये कहोगे ये क्यों नहीं किया कि आपने वैसे तो 15 पॉसिबिलिटीज हैं कि फ्रेंकली स्पीकिंग ये 5 है, 3 5 × 3 15, लेकिन 15 में से 9 जो है इन सिलेक्शन रूल ने अलाउ किया, जो 6 है वो डिसअलाउ। जैसे कि आप ये देखिए कि 2 है तो 2 - 0 वाली ट्रांजिशन नहीं आ सकती क्योंकि 2 - 0 इज 2, जो उसमें नहीं आ रहा। इसी प्रकार से ये -2 है, -2 में से 0 घटाएंगे वो भी नहीं आ रहा। तो हमें वो ट्रांजिशन टेक इनटू अकाउंट करनी है जो इन सिलेक्शन रूल को ओबे कर रही है। अब ये देखिए 0, ये देखिए 0 और ये जो है ये 1, 0 - 1 -1, ये देखो ये -1 -1 -0 -1 और ये देखिए -2 और ये -1 -2 माइनस ब्रैकेट -1 अगेन -1। तो ये 3 लाइंस कोरस्पोंड टू डेल्टा एम एल इज -1। सो कहने का मतलब 9 ट्रांजिशंस आपको दिख रही है और जिनमें से 3 ऐसी हैं जो डेल्टा एम एल इक्वल टू 1 है। और ये भी कहा था जब भी डेल्टा एम एल इक्वल टू 1 हो तो सिग्मा कंपोनेंट, डेल्टा एम एल इक्वल टू -1 फिर सिग्मा कंपोनेंट, डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 है तो पाई कंपोनेंट। सो लेकिन ये यही जीमन ट्रिपलेट है, यानी ये 3 जो है मिलके 1 बना रहा है सिग्मा, ये 3 0 वाला 1 बना रहा है, ये 3 -1 वाला कोड 1 बना रहा है। तो 3 लाइंस आई है जिनमें से मैंने आगे कमेंट दिया, कमेंट नंबर 1, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर टेकन परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो डेल्टा एम सफिक्स एल अगर +-1 है आता है तो वो ट्रांजिशन प्लेन पोलराइज होगी परपेंडिकुलर टू फील्ड, और डेल्टा एम सफिक्स एल
की वैल्यू जब भी प्लस माइनस 1 होगी तो वो उनको हम सिग्मा कंपोनेंट बोलेंगे. डेल्टा एल सफिक्स एल इज -1 सिग्मा कंपोनेंट, डेल्टा एम सफिक्स एल इज +1 सिग्मा कंपोनेंट. एंड ऑब्जर्वेशंस आर मेड परपेंडिकुलर, यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाई थी, तो उस केस में ये जो सिग्मा कंपोनेंट है दीज आर प्लेन पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड. और डेल्टा एम सफिक्स एल जो जो जीरो को कोरस्पोंड करता है वो प्लेन पोलराइज्ड तो वो भी है लेकिन पैरेलल टू फील्ड होंगे, इसीलिए उन्हें पाई कंपोनेंट बोला. कमेंट नंबर 2, अगर ऑब्जर्वेशंस आर मेड पैरेलल टू फील्ड, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देखते हैं, तो डेल्टा एम सफिक्स एल अगर +-1 आता है तो वो सर्कुलरली पोलराइज होते हैं, उन्हें हम सिग्मा कंपोनेंट बोलते हैं. लेकिन डेल्टा एम सफिक्स एल अगर 0 आता है और ऑब्जर्वेशन पैरेलल टू फील्ड में, तो जो है वो मिस हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाती है, फॉरबिडन है. इसीलिए क्या कहा था, जब ऑब्जर्वेशंस आर मेड पैरेलल टू फील्ड तो नॉर्मल डबलेट था, जब ऑब्जर्वेशन परपेंडिकुलर टू फील्ड था तो नॉर्मल ट्रिपलेट था, जिसमें 2 सिग्मा थे और 1 पाई था. थैंक यू सो मच. ये था नॉर्मल जीमन इफेक्ट. ओके.